سالار اعلیٰ ابن ولید کہے نہ کہے، کیا تم خود نہیں جانتے؟ مسلمانوں کے سالار ابو لیلہ اپنے کمانداروں اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے، اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے۔ کیا انجام ہوگا ان جسموں کا وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے، ان کے اندر مغز موجود ہیں مگر یہ مغز اب سوچنے کے قابل نہیں رہے، ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسرا کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ 3 راتیں پہلے یہاں گہما گہمی تھی، سپاہی ناچ رہے تھے، اس کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے۔ مسلمانوں کا شب خون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا، اور اب دیکھو سالار قعقاع بن عمرو نے اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں سے کہہ رہے تھے، یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، محمد کو اللہ کا رسول نہ مانا، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے۔ فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہے اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ آرام کا ایک پل نہیں ملتا۔ تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے۔ سالار اعلیٰ نے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفر پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ سالار زبرقان اپنے دستوں کے کمانداروں سے کہہ رہے تھے، ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عزم سے خالی کر دو تو ابھی گر پڑو گے اور جسم روحوں سے خالی ہو جائیں گے۔ جسم تو 2 لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں۔ سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمرو بھی جو سالار قعقاع بن عمرو کے بڑے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے، اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں۔ خالد نے کہا تھا، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفقو، جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی۔ ہمارا یہ لشکر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو دان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر غرور اور تکبر سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے، انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے اسے نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یک کے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ وقت دے دیں، وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال خالد مز میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی، یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمگاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمگاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر 2 مقامات پر جمع تھا، ایک زومیل تھا اور دوسرا تھا شینا۔
उन्हीं दो मकामात के मुतालिक इत्तला मिली थी कि आतिश परस्तों और ईसाइयों के लश्कर जमा हैं। अब खुद का भागा हुआ लश्कर भी वहीं जा पहुंचा था और मुझसे दुश्मन की जो नफरी बच निकली थी वो भी उन्हीं दो मकामात पर चली गई थी। इस शिकस्त खुर्दा नफरी ने शीना और ज़ूमील में जाकर दहशत फैला दी। वहां सरदार और सालार भी थे, उन्हें बहुत मुश्किल पेश आई। जज्बे के लिहाज से लश्कर लड़ने के काबिल नहीं था, जिस्मानी लिहाज से लश्कर ताज़ा दम था। शीना में इनकी औरतें भी थीं और बच्चे भी थे। औरतों ने मर्दों को बुज़दिली और बेगैरती के ताने दिए और उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया। इन दो मकामात पर जंग की तैयारियों का मंजर जंग जैसा ही था। सवार और प्यादे तेग जनी की मशक सुबह से शाम तक करने लगे। सवार दस्तों को हमला करने और हमला रोकने की मशकें कराई जाने लगीं। इस वक्त तक कसरा के सालार और उनके इत्तेहादी ईसाइयों के सरदार खालिद की जंगी चालीस समझ चुके थे, लेकिन चालें समझने से क्या होता है। ईसाइयों के एक कबीले का सरदार रबिया बन बजियर कह रहा था, दिल को जरा मजबूत रखें तो उन थोड़े से मुसलमानों को कुचलना कोई मुश्किल नहीं। इसके पास ईसाइयों के बड़े सरदार अका बिन इब्बी अका का बेटा बिलाल बिन अका बैठा हुआ था। अका बिन इब्बी अका सरदारों में सरकर्दा सरदार था। उसने ललकार कर कहा था कि वो खालिद का सर काट कर लाएगा, मगर ऐन अल्तमर के मरके में वो पकड़ा गया। इससे पहले खालिद ने कसम खाई थी कि वो अका को जिंदा पकड़ेंगे। खालिद की कसम पूरी हो गई। उन्होंने अका का सर अपनी तलवार से काटा था। बिलाल अका का जवान बेटा था, जो अपने बाप के खून का बदला लेने आया था। इब्न बजियर उसने अपने सरदार रबिया की बात सुनकर कहा, मैं अपने बाप के सर के बदले खालिद का सर लेने आया हूं। एक नहीं, हम पर हजारों सरों का कर्ज चढ़ गया है, रबिया बन बजियर ने कहा। वो कुछ देर बातें करते रहे, फिर बिलाल बिन अका चला गया। रात का वक्त था। रात सर्द और तारीक थी। महीना नवंबर का था और उसी शाम रमजान का चांद नजर आया था। बिलाल बाहर जाकर रुक गया। वो अपने लश्कर के खेमों से कुछ दूर था। इसे एक तरफ से अपनी तरफ कोई आता नजर आया। चांद कभी का डूब चुका था। तारीक रात में चलते फिरते इंसान मुतहर्रिक साए लगते थे। साया जो बिलाल की तरफ आ रहा था, करीब आया तो बिलाल ने देखा कि वो कोई आदमी नहीं, औरत है। इब्न अका, औरत ने कहा, मैं साबिया हूं। साबिया बिन्त रबिया, जरा रुक सकते हो मेरी खातिर? वो रबिया बिन बजियर की बेटी। बिलाल बिन अका ने मसरूर से लहजे में कहा, क्या मैं अभी अभी तेरे घर से उठकर नहीं आया? लेकिन बात जो कहनी है वो मैं बाप के सामने नहीं कह सकती थी। साबिया ने कहा, क्या तूने मुझे अपने काबिल समझा है? बिलाल ने कहा, बात जो तो कहना चाहती है वो पहले ही मेरे दिल में है, गलत ना समझ इब्न अका। साबिया ने कहा, पहले मेरी बात सुन ले। मुझे बता कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तूने कभी देखी है? नहीं बिन्त रबिया। कभी मुद्दाए गया है तो? साबिया ने कहा, गया हूं। सुना है फारिस की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है। साबिया ने कहा, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तो वो बात कह दे जो तेरे दिल में है? बिलाल ने पूछा और कहा, मैं तुझसे ज्यादा किसी लड़की को कभी हुसैन नहीं समझा। मैं तुझे तेरे बाप से मांगना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तेरे दिल में पहले ही मेरी मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मोहब्बत तो अब भी पैदा नहीं हुई। साबिया ने कहा, मैं किसी और को चाहती हूं, आज से नहीं, इस दिन से चाहती हूं, इसे जिस दिन मैंने महसूस किया था कि मैं जवान होने लगी हूं और जवानी एक साथी का मुतालबा करती है। फिर मुझे क्या कहने आई है तो ये कि मैंने उसे अपने काबिल समझना छोड़ दिया है। साबिया ने कहा, मर्द की ताकत औरत के जिस्म के लिए तो नहीं होती। वो ताकतवर और खूबसूरत आदमी है। वो जब घोड़े पर बैठता है तो मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर क्या हुआ इसे? वो बुज़दिल निकला। साबिया ने कहा, वो लड़ाइयों में से भाग कर आया है। दोनों बार उसे खराश तक नहीं आई थी।
मुझे शक है कि वो लड़े बगैर भाग आता रहा है। वो मेरे पास आया था, मैंने इसे कह दिया है कि वो मुझे भूल जाए। मैं किसी बुज़दिल की बीवी नहीं बन सकती। उसने मेरे बाप को बताया तो बाप ने मुझे कहा कि मैं तो उसकी बीवी बने वाली हूं। मैंने बाप से भी कह दिया है कि मैं मैदान से भागे हुए किसी आदमी की बीवी नहीं बनूंगी। मैंने बाप से ये भी कहा है कि मुझे इस शख्स की बीवी बनाना है तो मेरी लाश उसके हवाले कर दो। क्या अब तुम मेरी बहादुरी आजमाना चाहती हो? बिलाल ने पूछा। हाँ, साबिया ने कहा। और उसका इनाम देख। इतना हुसैन जिस्म तुझे कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, बिलाल ने कहा। लेकिन मैं एक काम का वदा नहीं करूंगा। हमारे सरदार और हमारे कबीलों के जोशीले जवान ये ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ लड़ने जाते हैं कि मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद का सर काट लाएंगे, मगर वो खुद कट जाते हैं, ना भाग आते हैं। मैं ऐसा वदा नहीं करूंगा। खालिद का सर कौन काएगा, इस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। मैं ऐसा वदा नहीं लूंगी, साबिया ने कहा। मैं तेरे मुंह से नहीं, दूसरों से सुना चाहती हूं कि तूने सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया है और मुसलमानों को शिकस्त देने में तेरा हाथ सबसे ज्यादा है। मैं ये भी वदा करती हूं कि तू मारा गया तो मैं किसी और की बीवी नहीं बनूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। मैं तुझे एक बात बता देता हूं साबिया, बिलाल ने कहा, मैं तेरी खातिर मैदान में नहीं उतर रहा। मेरे ऊपर अपने बाप के खून का कर्ज है, मैंने ये कर्ज चुकाना है। मेरी रूह को तस्कीन तभी होगी कि मैं इब्न वलीद का सर अपनी बर्छी पर लाऊं और बनी तगल्लुब के बच्चे बच्चे को दिखाऊं। लेकिन वो बात क्यों ज़बान पर लाऊं जो हाथ से न कर सकूं? इस तक पहुंचूंगा जरूर। रास्ते में जो आएगा उसे काटता जाऊंगा। मैंने अपना घोड़ा तब्दील कर लिया है, हुआ से तेज है और बड़ा ही ताकतवर है। तेरी ताकत और तेजी और फुर्ती देखना चाहती हूं, साबिया ने कहा। अगर ऐसा हो तो मुझे साथ ले चल, मर्दों की तरह लड़ूंगी, लेकिन अगर तूने पीठ दिखाई तो मेरी तलवार तेरी पीठ में उतर जाएगी। मैं तुझे माल गनीमत में मुसलमानों के हवाले नहीं करना चाहता, बिलाल ने कहा। और ये भी सुन ले साबिया, मेरा बाप अका यही अहद करके गया था कि वो खालिद बिन वलीद को खून में नहला कर आएगा, मगर उसने हथियार डालकर अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया। मालूम नहीं मुसलमानों को किसने बता दिया ये शख्स इब्न वलीद का खून बहाने का अहद करके आया था। इब्न वलीद ने मेरे बाप को कैदियों से अलग किया और सबके सामने अपनी तलवार से इसका सर काट दिया। मैं तुझे भी यही कहता हूं कि वो बात न कह जो तो नहीं कर सकती। और मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूं जो तुझे अच्छी नहीं लगेगी। साबिया ने कहा, अगर अब मेरे कबीले ने मैदान हार दिया तो मैं अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दूंगी और उनसे कहूंगी कि मैं इस आदमी की बीवी बनना चाहती हूं जो सबसे ज्यादा बहादुर है। हम इस काफशश में अपनी जानें लड़ा देंगे कि मुसलमान हमारी औरतों तक ना पहुंच सके। बिलाल बिन अका ने कहा, लेकिन कोई नहीं बता सकता क्या होगा। एक तरफ तेरे दिल में मुसलमानों की दुश्मनी है और दूसरी तरफ तुम अपने आप को मुसलमानों के हवाले करने की बातें करती हो। मैं ये बातें इसलिए करती हूं कि मेरे दिल में कुछ शक और कुछ शुबहे पैदा होते जा रहे हैं। साबिया ने कहा, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे मजहब मुसलमानों का ही सच्चा है। इतनी थोड़ी तादाद में वो फारिस के और हमारे तमाम कबीलों के लश्करों को हर मैदान में शिकस्त देते चले आ रहे हैं, तो उसकी वजह उसके सवा और क्या हो सकती है? उन्हें किसी गैबी ताकत की मदद हासिल है। अगर यसू मसीह खुदा के बेटे होते तो क्या खुदा अपने बेटे की उम्मत को इस तरह जलील व खार करता? मुझे बताने वाला कोई नहीं कि मुसलमान इसी खुदा को अल्लाह कहते हैं या अल्लाह कोई और है। ऐसी बातें मुंह से ना निकालो साबिया। बिलाल ने झिंझला कर कहा, तुम बहुत बड़े सरदार की बेटी हो, अपने मजहब पर ऐसा शक न करो कि इसकी सजा हम सबको मिले। मैं मजबूर हूं इब्न अका, साबिया ने कहा। मेरी जात से कुछ आवाजें सी उठती हैं। कभी ख्याल आता है जैसे मैं अपने कबीले में और अपने घर में अजनबी हूं। ऐसे लगता है मैं कहीं और की रहने वाली हूं। मैं कुछ नहीं समझती बिलाल, मैं जो कहती हूं वो करो, फिर मैं तुम्हारी हूं। ऐसा ही होगा साबिया।
बिलाल ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं अगर जिंदा वापस आया तो फातेह होकर आऊंगा, अगर मारा गया तो वापस आने वालों से पूछ लेना कि मैंने मरने से पहले कितने मुसलमानों को कत्ल किया है। बिलाल रात की तारीकी में गायब हो गया। साबिया वहीं खड़ी बिलाल को साए की तरह रात की तारीकी में तहलील होता देखती रही। 3 या 4 रातें ही गुजरी थीं। सुना की खैमागाह और ईसाइयों की बस्तियां तारीकी में डूबी हुई थीं। रमजान 12 का तीसरा या चौथा चांद कभी का उफुक में उतर चुका था। इंसानों का एक सैलाब सुना की तरफ बढ़ा आ रहा था। ये मदीना के मुजाहिदीन की फौज थी जो सैलाब कहलाने के काबिल नहीं थी, क्योंकि उनकी तादाद 15 या 16 हजार के दरमियान थी और दुश्मन की नफरी 3-4 गन्ना थी। खालिद ने सुना पर भी मुझवाला दाव आजमाने का फैसला किया था। उन्होंने अपने मुजाहिदीन से कहा था कि दुश्मन को और अपने आप को भी मोहलत देना खतरनाक होगा। अल्लाह हमारे साथ है, फतह और शिकस्त उसके हाथ में है। हम उसकी जात बारी के नाम पर कुफर की आग में कूदे हैं। खालिद ने और भी बहुत कुछ कहा था। मुजाहिदीन के अंदाज में जोशो खरूश पहले वाला ही था। जिस्मों में अलबत्ता वो दम खम नहीं रहा था, लेकिन अज़्म रोजी अव्वल की तरह जिंदा ओ पाइंदा था। जैसा कि पहले कहा गया है कि 15-16 हजार के लश्कर से दुश्मन पर शब खून मारना इसलिए खतरनाक होता है कि खामोशी बरकरार नहीं रखी जा सकती और दुश्मन कब्ल अज वक्त बेदार हो जाता है। इसमें दुश्मन की घात का खतरा भी होता है। खालिद ने इन खतरों से निमटने का ये एहतिमाम कर रखा था कि पहले शब खून की तरह अब के भी उन्होंने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सालार भी वही थे जिन्हें पहले शब खून का तजुर्बा हासिल हो चुका था। अब जासूसों ने उन्हें दुश्मन के कयाम की जो इत्तला दी थी, उनके मुताबिक मुद्दाएं की फौज और ईसाइयों का लश्कर एक ही खैमागाह में नहीं थे। खैमागाह में सिर्फ मुद्दाएं की फौज थी और ईसाई अपनी बस्तियों में थे। ये बनी तगल्लुब की बस्तियां थीं। जासूसों ने इन बस्तियों के महल वकू बता दिए थे। खालिद ने अपनी फौज के एक हिस्से की कमान सालार काका को और दूसरे हिस्से की कमान सालार अबू लैला को दी थी। तीसरा हिस्सा अपनी कमान में रखा था। उन्होंने काका और अबू लैला को ईसाई कबीले बनी तगल्लुब की बस्तियों पर शबखून मारना था, जो बस्तियों की निस्बत जरा करीब थी। तीनों हिस्सों को बैक वक्त हमला करना था। मौरखीन ने लिखा है कि खालिद ने हुक्म दिया था कि किसी औरत और किसी बच्चे पर हाथ न उठाया जाए। कुफ्फार को मुझ के मकाम पर मुसलमानों के एक शब खून का बड़ा ही तल्ख तजुर्बा हो चुका था। उन्होंने शन की खैमागाह के अर्द गिर्द पहरे का बड़ा सख्त इंतजाम कर रखा था। गश्ती पहरे का इंतजाम भी था। 4-4 गेवर सवार खैमागाह से दूर दूर तक गश्त करते थे। मुसलमान जासूसों ने खालिद को इस इंतजाम की भी इत्तला दे दी थी। खालिद ने इस इंतजाम को बेकार करने का बंदोबस्त कर दिया था। शन से कुछ दूर खालिद की फौज पहले से तय किए हुए मंसूबे के मुताबिक रुक गई। उसे आगे की इत्तला के मुताबिक आगे बढ़ना था। चंद एक शुतर सवार जो मुसना इब्न हारसा के आजमाए हुए छापामार थे, आगे चले गए थे। वो ऊंटों के काफिले की सूरत में जा रहे थे। वो शन की खैमागाह से अभी दूर ही थे कि उन्हें किसी ने ललकारा। वो रुक गए और अपनी तरफ आते हुए घोड़ों के टाप सुनने लगे। 4 घोड़े उनके पास आके, कौन हो तुम लोग? एक गेवर सवार ने उनसे पूछा। मुसाफिर हैं। एक शुतर सवार ने डरे हुए लहजे में जवाब दिया और किसी बस्ती का नाम लेकर कहा कि वहां जा रहे हैं। शुतर सवार 8-10 थे। इनमें से एक तो गेवर सवारों को बता रहा था कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। दूसरे शुतर सवार ऊंटों को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते रहे, हत्ता के 4 गेवर सवार उनके नरगे में आ गए। उतरो ऊंटों से। एक गेवर सवार ने बड़े रोब से हुक्म दिया। 4 शुतर सवार ऊंटों से इस तरह उतरे के ऊपर से एक गेवर सवार पर झपटे। उनके हाथों में खंजर थे जो गेवर सवारों के जिस्मों में उतर गए। उन्हें घोड़ों से गिराकर खत्म कर दिया गया। 4 मुजाहिदीन चारों घोड़ों पर सवार हो गए और दुश्मन की खैमागाह तक चले गए। एक संतरी उन्हें अपनी सवार गश्त समझकर उनके करीब आए। अंधेरे में 2 गेवर सवार उतरे और इस संतरी को हमेशा की नींद सुला दिया। उन्होंने कई और सुंतरियों को खामोशी से खत्म किया और वापस आ गए।
खालिद बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वो जो ऊंटों पर गए थे, 4 घोड़े भी साथ ले आए। उन्होंने खालिद को बताया कि रास्ता साफ है। खालिद ने सरगोशियों में कासिदों को दूसरे सालारों की तरफ इस पैगाम के साथ दौड़ा दिया कि हल्ला बोल दो। इस वक्त तक घोड़ों के मुंह बंधे हुए थे, वो हुनहिना नहीं सकते थे। सवारों ने सालारों के कहने पर घोड़ों के मुंह खोल दिए। उनके हदफ दूर नहीं थे। कुछ दूर तक घोड़े पियादों की रफ्तार के साथ आहिस्ता चलाए गए, फिर रफ्तार तेज कर दी गई और पियादों को दौड़ना पड़ा। बस्तियों के करीब जाकर मशलें जलाई गईं। खालिद ने अपने दस्तों को इतनी तेजी से आगे न बढ़ाया। उन्होंने शब खून की तरतीब में फैला दिया था। ये ऐसी पेश कदमी थी जिसमें कोई नारा न लगाया गया, न किसी को ललकारा गया। रमजान अल मुबारक की 12 हिजरी के पहले हफ्ते की वो रात बहुत सर्द थी। बनी तगल्लुब की बस्तियों में और फारिस की फौज की खैमागाहें जो वसी व अरीज थी, लोग गर्म बिस्तरों में दबके हुए थे। कोई नहीं बता सकता था कि कौन क्या ख्वाब देख रहा था। ये कहा जा सकता है कि हर एक के जहन पर मुसलमानों की फौज और उसकी दहशत सवार होगी। लोग इसी फौज की बातें करते सोए थे। अचानक बस्तियों के घरों के दरवाजे टूटने लगे, गलियों में घोड़े दौड़ने लगे। मुजाहिदीन ने मकानों से चारपाइयां और लकड़ियां बाहर लाकर जगह जगह उनके ढेर लगाए और आग लगा दी ताकि बस्तियां रोशन हो जाएं। औरतों और बच्चों की चीख व पुकार ने सर्द रात को हिलाकर रख दिया। औरतें अपने बच्चों के साथ बाहर आकर एक तरफ खड़ी हो जाएं। ये मुजाहिदीन की ललकार थी जो बार बार सुनाई देती थी। बनी तगल्लुब के आदमी कट रहे थे। खालिद का हुक्म था कि बूढ़ों, औरतों और बच्चों के सिवा किसी आदमी को जिंदा न रहने दिया जाए। इन लोगों को वो लश्कर बचा सकता था जो थोड़ी ही दौर खैमागाह में पड़ा था। बस्तियों का वावेला लश्कर तक पहुंचा, लेकिन वहां नींद और सर्दी ने सबको बेहोश सा कर रखा था। लश्कर को जगाने के लिए कोई संतरी जिंदा न था। आखिर खैमागाह में कुछ लोग बेदार हो गए। उन्हें इर्द गिर्द की बस्तियों में रोशनी नजर आई, शोर भी सुनाई दिया। वो अभी समझने भी ना पाए थे कि ये क्या हो रहा है। वैसी ही हड़बोंग खैमागाह के एक गोशे में बपा हुई जो आंधी की मानिंद बढ़ती और फैलती गई। कुछ खेमों को आग लग गई। खालिद के दस्तों ने आतिशप्रस्तों की फौज को काटना शुरू कर दिया था। ये फौज अब कटने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। दुश्मन के बहुत से सिपाही खेमों में दबक गए थे। इन खेमों की रस्सियां मुसलमानों ने काट दें। खेमे सिपाहियों के लिए जाल और फंदे बन गए। मुसलमानों ने उन्हें बरछियों से खत्म कर दिया। मुसलमानों के नारे और उनकी ललकार बड़ी दहशतनाक थी। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों को इतने वसी पैमाने पर शब खून मारने का दूसरा तजर्बा हुआ। अब उन्होंने ये इंतजाम कर दिया था कि किसी को भागने ना दिया जाए। बस्तियों और खैमागाह के अर्द गिर्द मुसना बिन हारसा के गेवर सवार घूम फिर रहे थे। कोई आदमी भाग के जाता नजर आता तो उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया जाता और बर्छी या तलवार से उसे खत्म कर दिया जाता। अगर कोई औरत भागती नजर आती तो उसे पकड़कर इस जगह पहुंचा देते जहां औरतों और बच्चों जो इकट्ठा किया जा रहा था। ज्यों-ज्यों रात गुजरती जा रही थी, बनी तगल्लुब की बस्तियों में और मुद्दाएं की फौज की खैमागाह में शोर व गौगा और वावेला कम होता जा रहा था और जख्मियों की कर्बनाक आवाजें बुलंद होती जा रही थी। मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए जो निकले थे, उनकी लाशें ठंडी हो रही थीं और उनके जख्मी प्यासे मर रहे थे और उनकी बेटियां मुसलमानों के कब्जे में थीं। सुबह तुलू हुई तो उजाले ने बड़ा ही भयानक और इबरतनाक मंजर दिखाया। लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। लाशें खून से नहाई हुई थीं। ये फतह ऐसी थी जैसे कसरा के बाजू काट दिए गए हों। खैमागाह और बस्तियां मौत की बस्तियां बन गई थीं। जिन घोड़ों पर उन कुफ्फार को नाज था, वो घोड़े वहीं बंधे हुए थे जहां गुज़िश्ता शाम उन्हें बांधा गया था। ऊर्त अलग बैठी रो रही थीं। बच्चे बुलबुला रहे थे। खालिद ने हुक्म दिया कि सबसे पहले औरतों और बच्चों को खाना दिया जाए।